السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اے کے نیوز۔ اور اس ٹائم پہ جس طرح پورے پاکستان میں الیکشن کی کشمکش ہے اور پورے جتنے بھی پاکستان ہیں الیکشن کی کمپین ہر امیدوار چلا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے جو وزٹ کیا ہے پی ایس 86 کا، جو کہ ملیر کی ایک یہ پی ایس لگتی ہے، یہاں سے جو امیدوار ہیں ہمارے کافی ماشاءاللہ ان کی ورکنگ دیکھیے۔ اور ایک چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ فرسٹ آفس ہے جو برابری پارٹی کا ہے، جو جواد احمد کی جانب سے جو ایک سنگر ہیں، تو وہ آئے ہیں، میدان میں اترے ہیں اور عوام کے لیے نئی نئی چیزیں بھی لا رہے ہیں، نئی سے مراد کے عوام کے لیے وہ چیزیں جو ہمارے پرانے حکمران ہیں وہ نہیں دے پائے، ایسی سہولیات۔ کیونکہ دیکھیں جو بھی ایم پی اے ایم این اے آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف جو وعدے کرتے ہیں روڈ کے کرتے ہیں، لائٹنگ کی کرتے ہیں، لیکن ان کا مشہور کیا ہے اور یہ کیا ایسی چیزیں لے کے آئیں، اور عوام کو آنے کے بعد جب یہاں سے ایم پی اے کی سیٹ جیتیں گے تو اس کے بعد وہ عوام کو کیا سہولیات دیں گے۔ تو بات کرتے ہیں جمشید اقبال بلوچ صاحب سے، اور یہاں پی ایس 86 سے یہ ہیں، برابری پارٹی سے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مشہور لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سب سے پہلے تو میں اے کے نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے آفس میں تشریف لائے آپ۔ بہت شکریہ جمشید بھائی، اور بہت بڑی بات ہے کہ جس طرح برابری پارٹی کا دیکھا جائے تو شاید میری نظر میں کوئی آفس نہیں ہوگا، تو آپ نے پہلا ایک آفس بنایا اور یہاں پر اس علاقے میں بہت اچھی الیکشن کمپین بھی آپ نے جاری رکھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ عوام کے پاس آپ جا رہے ہیں تو کیسا رسپانس مل رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، ہم اگر کچھ عوام کو دکھائیں گے تو عوام کو پتہ چلے گا کہ برابری پارٹی بھی وجود میں ہے۔ ہماری پارٹی جو ہے نا 2012 سے وجود میں آئی ہے، لیکن 2018 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے وہ۔ تو ہم جواد صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ غریب اور مڈل کلاس لوگ الیکشن میں حصہ لیں اور الیکشن لڑ کے امیروں کے ساتھ ہم مقابلہ کریں سیاسی میدان جنگ میں، اور اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں غریبوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے کہ یار ہم ان کے لیے کچھ کریں، ان کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور سیاسی لڑائی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہمارے کسی کا کچھ ذاتیں نہیں ہیں۔ لوگوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں، 76 سال کا مسائل ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں، 76 سال کے، آنے والی نسلیں جو تباہ ہو چکی ہیں، تباہ و برباد ہو چکا ہے نظام پاکستان کا جو ہے، تو ہمیں یہ دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ہمت نہیں ہارتے، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں گے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ نیو پارٹیز آئیں، نیو لوگ آئیں، نیو چہرے آئیں جو لوگوں کے مسائل کے لیے کم کریں، لیکن لوگ جو بھی آتے ہیں وہ لوگوں کے لیے کم نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں، لوگوں کو جھوٹے خواب دکھاتے ہیں، سہانے خواب دکھا کر وہ اپنے ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 5 سال کے بعد وہ شکل دکھاتے ہیں، جب وہ آتے ہیں وہ سڑکیں وہیں کی وہیں ہوتی ہیں، سیوریج کا نظام وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ جو غریب یا علاقے کے لوگ جن کے مسائل ہوتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اب وہ اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے کہاں جائیں، لیکن ان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حلقے کے لوگ جو ہیں ہم ان کے مسئلے حل کریں، جو ہم سے اپنی طرف سے ہو رہا ہے ہم وہ بھی حل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں تو پھر بھی ہم انشاءاللہ رات دن اپنی عوام کے لیے کام کریں گے، اور میرے حلقے کے لوگ ہیں جو نہیں بھی ہیں ہم ان سب کے لیے دن رات انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کے علاقے کا وزٹ کیا ہے، کیونکہ آتے ہوئے ہم نے آپ کے ایریا دیکھا ہے، تو یہاں کے کافی جو روڈ ہیں وہ مطلب بالکل خراب ہوئے ہیں، اور لائٹ کا جو نظام ہے وہ بھی آؤٹ ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ یہ کیا ابھی سے ہو رہا ہے یا شروع سے ہی یہی حالات تھے یہاں پہ؟ دیکھیں سر، شروع سے ایسے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بد نصیبی کی بات ہے، کیونکہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو گورنمنٹ اکٹھا کر رہی ہے، ہم اگر ان سے یہ حساب لیں تو وہ 1 سال کا حساب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ ایک غریب ہے، بچہ ہے، ٹھیلے والا ہے یا جھاڑو دیتا ہے، وہ ٹیکس بھر رہا ہے، ہمارے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، ہمیں یہ پوچھنا چاہیے عوام کو۔ لیکن عوام انشاءاللہ باشعور ہو چکے ہیں، اب عوام اپنا حساب لیں گے۔ یہ سڑکیں شروع سے ایسی ہیں، یہ سن 82 کا پروجیکٹ ہے، شاہ لطیف ٹاؤن سیکٹر 30 میں بیٹھے ہیں، اور یہ پروجیکٹ ہے، سکیم جو ہے 25 ہے، تو یہ گلیاں، یہ سڑکیں، یہ سب ایسا نظام ہے۔ آپ اگر کبھی دن میں وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے تو لوگ یہاں پہ بہت پریشان ہیں۔ ہم یہ چیزیں دیکھ کر تو میں سیاست میں آیا ہوں، اور یہ چیز دیکھ کے میں آیا ہوں کہ لوگوں کے کچھ نہ کچھ کام آ سکے۔ ہماری سیاست جو ہے نا وہ خدمت انسانیت ہے، ہم بالکل صاف شفاف سیاست کرتے ہیں، ہمیں لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ووٹ لینے کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچنا۔
जिस तरह मुझे मालूम हुआ है आपके इलाके से, जिस तरह हमने मालूमात ली हैं, तो पता चला है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अवाम के अंदर रहकर ही जो अवाम का दर्द समझ सकते हैं तो वो हम जैसे आप जैसे लोग समझ सकते हैं। तो आपका ख़ास तौर पे अवाम के लिए क्या मशहूर है और क्या लेकर ऐसी नई चीज़ लेकर आएंगे, अगर अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह फ़तह देता है तो इस इलाके के लिए क्या आप ऐसी नई चीज़ लेके आएंगे? देखें सर, इस हाथों से मैंने बहुत मेहनत की है। मैं मिडिल क्लास घराने से हूँ वाकई। तो जो दर्द गरीब का हम जानते हैं वो वडेरे जागीरदार नहीं जानते, क्योंकि वो जब पैदा होते हैं तो वो सोने का चम्मच मुंह में लेते हैं और पराडो उनके पास होती है, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। वो दूसरे का क्या दर्द जानेंगे? दर्द जानेंगे तो सिर्फ हम जैसे मिडिल क्लास, हम जैसे गरीब जानते हैं, जिनके हाथों में छाले होते हैं, वही दर्द जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क वसाइल से भरा पड़ा है, इसमें बहुत वसाइल हैं अगर उसको एक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अफसोस कि ऐसा कोई सियासतदान नहीं है, जो भी आता है सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए और गरीबों का खून नचोड़ के वो चला जाता है। और मेरा दिल खून के आंसू रोता है, मेरा दिल फटता है कि यार ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते जो गरीब के हक में हो। गरीब के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाते हैं जबकि अमीर को छूट पे छूट देते हैं। क्यों? ये कौन सा कानून है ऐसा इजाज़त देता है? बराबरी पार्टी पाकिस्तान जो है वो चाहती है, बराबरी पार्टी पाकिस्तान सबके लिए कानून बराबर चाहती है, सबके लिए चाहते हैं कि कानून बराबर हो, अमीर गरीब सब बैठकर बात करें। असेंबलियों में हम गरीब आएंगे, असेंबली में हम मिडिल क्लास लोग आएंगे तो अपने लिए कानून बनाएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ सड़कें बनी हों खूबसूरत, यहाँ पे खूबसूरत पार्क हों, यहाँ पे हस्पताल हों, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल हों, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो इलाके से दूर ना जाना पड़े लोगों को। अब इस टाइम बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, बच्चों के पास पार्क नहीं है खेलने के लिए, बच्चों के पास तालीम नहीं है, बच्चों के पास सेहत नहीं है, वो कहाँ जाएंगे गरीब लोग? गरीब लोग तो परेशान ही परेशान हैं, वो तो मसाइल में घिरे हुए हैं और हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इंशाल्लाह हम वो आवाज़ उठाते रहेंगे गरीबों के लिए, चाहे हमारी जान भी चली जाए इंशाल्लाह। जमशेद इकबाल साहब, एक बात जो ख़ास थी वो ये थी कि PS 86 में आपके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी मज़बूत हैं। जिस तरह देखा जाए तो नून लीग से, PTI से और पाकिस्तान पीपल पार्टी से, तो क्या आप लगते हैं, इस तरह लगता है कि क्या आपके भी चांस बन पाएँगे और इंशाल्लाह अगर आपको फ़तह मिलती है तो क्या इनकी टक्कर में आप खड़े हो पाएँगे? बिल्कुल जी, देखें हमने अगर जवाद साहब ने हमें टिकट दी है, हम सामना कर रहे हैं और हमारा मकसद ही यही है कि हम इन वडेरों का सामना करें सियासी मैदान में आकर। हमारे किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती अना नहीं है, ना हम अना के साथ रखते हैं। हम इनका मुकाबला करके अवाम में आना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि हम बराबरी पार्टी पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ पाएंगे और अवाम इस टाइम हमारे साथ है। कि कोई अवाम चाहती है कि न्यू कोई आए, न्यू चेहरे हैं, न्यू लोग हैं जो मसाइल हल कर सके लोगों के। पुरानी पार्टी जितनी भी हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, वो आते हैं, आकर स्वान ख्वाब दिखाकर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। जैसे कि अभी मौसम बन चुका है, अभी आएँगे, वो मिन्नतें कर लेंगे, तरले करेंगे, लोगों को 2-2 हज़ार रुपए देंगे, उनके वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम मेरिट की बुनियाद पर वोट लेंगे और लोगों के एक-एक घर में जाकर हम वोट माँग रहे हैं और इंशाल्लाह लोग हमें यकीन दहानी करवा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि हम लोगों के बीचों बीच रहते हैं, हम बाहर के रहने वाले नहीं, ना लंदन में रहते हैं, ना इस्लामाबाद में रहते हैं, ना हम डिफेंस में रहते हैं। हम इस आम लोगों के दरमियान में रहते हैं। लोग अब समझ चुके हैं, इंशाल्लाह हम उनका मुकाबला भरपूर तरीके से करेंगे। अच्छा, 9 मई के वाक़ये को आप कैसा देखते हैं? जो 9 मई का एक वाक़या था जो पाकिस्तान में एक समझे बहुत क्रिएट किया जा रहा था मीडिया मीडिया पर भी, और इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें जी, ये तो बहुत अफ़सोस की बात है कि हमारी जो आर्मी है वो हमारा मान है। हमारी आर्मी हमारे मुल्क की एक मज़बूत तरीन आर्मी है। हमें चाहिए कि हम आर्मी के ख़िलाफ़ ऐसी कोई घिनौनी साज़िश ना करें जिसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम हो या हमारा नाम बदनाम हो। इस टाइम जो हालात उस 9 मई वाक़ये की वजह से हो चुके हैं, उसकी वजह से हमारा मुल्क जो है ना वो डूब चुका है तकरीबन। और ये जो सियासत इस टाइम चल चुकी है वो अना की सियासत चल चुकी है। मैं समझता हूँ कि आर्मी के खिलाफ हमें बात नहीं करनी चाहिए। आर्मी हमारी है, आर्मी कोई बाहर की नहीं है कि जिसके खिलाफ हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आर्मी में कुछ जर्नैल या कुछ लोग गलत होते हैं तो उसके लिए हम एक कानून बनाएं। असेंबली में किस लिए आते हैं, पार्लियामेंट में हम किस लिए आते हैं, हम इलेक्शन किस लिए लड़ते हैं? हम इसलिए लड़ते हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठकर कोई कानून साजी कर सकें। अगर कोई लोग गलत हैं आर्मी में तो हम उनके खिलाफ कानून बनाएं, कानून के ज़रिए ही हम उनको गिराएं। ये नहीं कि हम जो भी उठता है अपनी सियासत चमकाने के लिए इन जर्नैलों के खिलाफ बोलते हैं, आर्मी के खिलाफ बोलते हैं और नाक हमारा कट जाता है। बाहर के लोग हम पर हंसते हैं कि देखो ये तो आपस में लड़ पड़े। हमें, मेरा जो ज़मीर है, जो मेरी सियासत है, मैं चाहता हूं कि हमें आर्मी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आर्मी हमारे लिए दिन रात बॉर्डरों पे बैठी है। हमारे बच्चे आज सुकून की नींद सोते हैं। अगर हम
हमारी इज्जतें महफूज हैं तो उस आर्मी की वजह से हैं। अगर आर्मी में कोई करप्ट है तो उसके लिए कानून साजी की जाए। आप हमारे चैनल के तबस्सुम से PS86 की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? देखिए जी, मैं PS86 की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि देखें 76 सालों से आप लोग के साथ जो ड्रामा किया जा रहा है, आप खुदा के लिए उस ड्रामे से आप निकलें और मुझे वोट दें। 8 फरवरी को कलम पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब करें, ताकि मैं आपके मसाइल के लिए आवाज़ उठा सकूँ, असम्बलियों में जा सकूँ, आप लोगों के मसाइल हल करवा सकूँ। यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ के स्कूल का निज़ाम है, यहाँ का पार्क का निज़ाम है, जैसे कि अस्पताल है, आज तक कुछ नहीं बना। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी आवाम वोट देकर मुझे कामयाब बनाए, मैं दिन रात अपनी आवाम के लिए काम कर सकूँ। जी, तो नाज़रीन हम इस टाइम मौजूद थे PS86 में और हमारे साथ जो मौजूद थे बराबरी पार्टी के उम्मीदवार जमशेद इकबाल बलोच साहब। तो आपने इनकी राय सुनी और आपने इनकी जो उम्मीद थी वो इस इलाके के लिए जो इनकी अच्छी नेक ख्वाहिशात थी, तो उस हवाले से आपने इनकी बात सुनी है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो इलेक्शन है वो आप जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार है उसके निशान पर आप मोहर लगाएँगे और इलेक्शन में ज़रूर वोट देने के लिए आप निकलेंगे और साबित करेंगे कि जो भी आपका उम्मीदवार है, चाहे वो जैसा भी है, वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने ऊपर के हुक्मरान ऐसे लाएँ जो हमारे लिए अच्छे हों। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। तो अब हमें सोचना है कि हम अपने आने वाले वक़्तों में कैसे हुक्मरान लाएँ, कैसी अवाम लाएँ और जो अवाम के अंदर रहकर हमारा ख़्याल करे और एक अवाम की तरह, एक आम इंसान की तरह हमारी खिदमत करे। तो हमारे एके न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें। इसी तरह और इलाके में भी जाते हैं और एनए और पीएस के भी विज़िट करते हैं और वहाँ के एमपीए, एमएनए और वहाँ की जितनी भी अवाम है, उनसे आपकी बात करवाएँगे और इलेक्शन के हवाले से पूछेंगे कि उनका क्या राय अमल है। तो दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।